بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام نوریس ہے۔ میرا تعلق جس علاقے اور طبقے سے تھا وہاں کے لوگوں کے لیے میرا نام بہت ہی انوکھی اور الگ چیز تھا، اور میں بھی اپنے نام کی طرح بہت الگ سا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنی قسمت کو بھی اپنے نام کی طرح بنا لوں گا۔ میں تو محنت پر یقین رکھنے والا نوجوان تھا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی مجھے کیسے موڑ پر لے جائے گی جہاں سب کچھ میرے لیے ایک گالی بن جائے گا۔ آج کافی سال گزرنے کے بعد میں جس مقام پر ہوں وہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح ملے گا۔ کاش کہ میں اپنے آپ کو بچا پاتا تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہوا تھا، مگر کاش تو صرف کاش ہوتی ہے۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کئی سالوں سے غربت کا راج تھا۔ سنا تھا کہ دادا کے دور میں حالات بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، مگر ان کے جانے سے جیسے ساری برکتیں ہی چلی گئی تھی۔ حالانکہ دادا جو کام کرتے تھے ابا نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا اور روزی روٹی کا ذریعہ بنایا تھا۔ جب تک دادا زندہ رہے ابا نے ان کے ساتھ ہی کام شروع کر دیا تھا اور ان کے ساتھ ہی کام کرتے رہے۔ اس وقت گھر کے حالات کافی بہتر تھے۔ دادا نے بڑی چھوٹی عمر میں ہی سموسے پکوڑے بیچنا شروع کر دیے تھے۔ سارا مال وہ گھر پر دادی کے ساتھ مل کر تیار کرتے تھے اور پھر ٹوکری میں رکھ کر بازار میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے دادا نے بہت محنت کی اور ٹوکری کے بجائے ٹھیلے پر ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر کام مزید چل نکلے گا تو وہ بازار میں کوئی چھوٹی سی دکان لے لیں گے اور وہاں پر قرضہ لے کر مال ڈال دیں گے۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے یعنی میرے ابا کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میرے ابا نے جب اپنے والد کے ساتھ یہ کام شروع کیا اس وقت ابا کی عمر 12 سال تھی۔ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، حالانکہ دادا نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ جائے اور پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو، مگر ابا پڑھائی سے زیادہ اسکول سے بھاگنے پر توجہ دیتے تھے۔ تنگ آ کر دادا نے ابا کو اسکول بھیجنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ یا تو اب بیٹے کو زبردستی پڑھا لیتے یا پھر کما کے گھر چلا لیتے، اور ان کے پاس خود کمانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ ابا نے بھی کام میں دادا کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے والد کے ساتھ سموسے پکوڑوں کا کام پڑھائی کرنے سے زیادہ آسان لگتا تھا۔ حسب معمول سموسوں پکوڑوں کا سارا مال گھر میں تیار کیا جاتا تھا۔ پہلے دادا اور دادی اکیلے یہ کام کرتے تھے، پھر ابا نے بھی ان کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور سال بھر میں وہ کافی کام سیکھ گئے تھے۔ دادا کے ساتھ سموسے بیچنے بھی جاتے اور ابا کی کوشش ہوتی تھی کہ کم وقت میں زیادہ سامان نکل جائے۔ ابا کو اس طرح کام میں جی لگاتے ہوئے دیکھ کر دادا کو بھی تسلی ہوئی کہ چلو پڑھائی نہ صحیح مگر کام میں تو ان کا دل لگ گیا تھا۔ اس وجہ سے دادا ابا کو روزانہ کچھ نہ کچھ خرچی بھی دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ خرچی کے لالچ میں ہی ان کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ گھر ان کا اپنا تھا اور گھر میں کھانے والے صرف 3 ہی لوگ تھے۔ جب دونوں باپ بیٹا نے مل کر کمانا شروع کیا تو گھر کے حالات بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ ہاں یہ بھی نہیں تھا کہ گھر میں بہت آسائش اور سہولت کی چیزیں ہوں، مگر 2 وقت کی روٹی اور باقی اخراجات بڑی سہولت سے ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ابا 19 سال کے ہو گئے۔ تب دادی نے دادا سے بات کی کہ اب بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ گھر میں بہو بھی آ جائے اور رونق کا سامان بھی ہو جائے۔ دادا کو بھی ان کی یہ بات اچھی لگی، کیونکہ 2 کمروں کے گھر میں انہیں بہو کے آنے پر کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی آمدنی اتنی کم تھی کہ اچھے سے گزارا نہ ہو سکے۔ دادا نے فوراً ہاں کر دی اور دادی نے ابا کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی۔ دادا کو اپنے خاندان والوں سے تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کے لیے اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے، اس لیے دادا نے کسی سے بات ہی نہیں کی، کیونکہ ان کے خاندان میں سبھی رشتے دار اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ کوئی بھی دادا کی طرح ریڑھی لگا کر سموسے پکوڑے نہیں بیچتا تھا، بلکہ اکثر نے تو دادا اور ان کے اہل و عیال سے ملنا جلنا بھی چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک سموسے پکوڑوں کی ریڑھی لگانا ایک عیب تھا، جبکہ دادا ہمیشہ ہی یہی کہتے تھے کہ وہ حلال کماتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو حلال ہی کھلاتے ہیں۔ اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کے کام کے بارے میں کیا سوچتا ہے، مگر دادا اپنے خاندان میں سے کسی کے سامنے بھی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈال کر مزید کسی کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے دادی نے ابا کے لیے اپنے بھانجے کا انتخاب کیا
क्योंकि इन लोगों को अपनी बहन के यहाँ बेटी देने पर कोई एतराज नहीं था। बल्कि जब दादा और दादी ने इनके यहाँ रिश्ता डाला तो वो लोग बड़े खुश हुए। उनके हालात भी दादा दादी के हालात से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे और उन्होंने यही देखकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी कि लड़का कमाता भी है और घर बार भी इनका अपना है। ऊपर से अब्बा इकलौते थे तो जो कुछ भी था वो अब्बा का ही था। इस तरह महज 1 साल में अब्बा और अम्मा की शादी हो गई और अम्मा दुल्हन बनकर अब्बा के घर आ गई। मेरी अम्मा दिल की बहुत अच्छी थी और इतनी सादा मिजाज थी कि अब्बा अपनी मर्जी से इनके लिए जो भी पसंद करते वो मुस्कुरा के रख लेती थी। उन्होंने ना तो कभी अपने लिए अब्बा से कोई फरमाइश की और ना ही इस बात पर एतराज किया कि घर का और सारा निजाम और खर्चा दादी के हाथ में था, बल्कि उन्होंने तो दादा और दादी की बहुत खिदमत की। शादी होने के चंद दिन बाद ही घर के कामकाज संभाल लिए। मेरी दादी भी अपनी भांजी और इकलौती बहू से बहुत प्यार करती थी। दोनों मिलजुल कर काम भी निपटा लेती और खूब बातें भी करती रहती थी। उनके इस प्यार और इत्तेफाक को देखकर दादा और मेरे अब्बा बहुत खुश होते थे, क्योंकि अब्बा को यही डर था कि उनकी आने वाली दुल्हन कहीं सास ससुर के खिलाफ महाज न खड़ा कर ले। अगर ऐसा होता तो अब्बा भले क्या करते, क्योंकि वो तो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। बीवी के कहने पर ना तो माँ बाप को छोड़ सकते थे और ना ही माँ बाप की बातों में आकर बीवी के साथ कोई ज्यादती कर सकते थे। मगर जब उन्होंने अम्मा को अपने घर और घर वालों के दिलों में जगह बनाते हुए देखा तो इनका दिल भी सुकून से भर गया। मेरी अम्मा भी दादी के साथ समोसों पकौड़ों का माल तैयार करने में मदद करने लग गईं। इस तरह काम में और आसानी हो गई और रेडी पर माल भी ज्यादा बनकर जाने लग गया। अम्मा ने अब्बा को मशवरा दिया कि इन्हें समोसे पकौड़े बनाकर किसी स्कूल या कॉलेज की कैंटीन में भी देने चाहिए। इस तरह आमदनी का सिलसिला बढ़ जाएगा। तब अब्बा ने 2-3 स्कूलों में बात की तो एक जगह पर बात बन गई, मगर माल भी ज्यादा तैयार होने की वजह से काम भी बढ़ गया था और मेहनत भी ज्यादा होती थी। मगर अब मिलजुल कर काम करने वाले 4 लोग थे जो घर में काम निपटा लेते और बाहर का सारा काम दादा और मेरे अब्बा देखा करते थे। जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी। देखते ही देखते अम्मा अब्बा की शादी को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर इनके आंगन में कोई फूल नहीं खिला था। हर नई शादीशुदा जोड़े की तरह इन्हें भी इंतजार था और इनसे जुड़े हुए लोगों को भी खुशखबरी सुनने की जल्दी थी। मगर पहले पहल तो किसी ने भी ये सोचकर तवज्जो नहीं दी कि अभी वक्त ही कितना गुजरा है। मगर वक्त गुजरने में देर ही कहाँ लगती है। कैसे शादी को 3 साल पूरे हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। वही शाम सहर थे और वही सब घर वालों के काम थे। अम्मा अपने फर्ज अदा करती रहीं और अब्बा दादा के साथ मिलकर रोजी रोटी का वसीला बनाते रहे। लेकिन दादी को बहुत फिक्र रहने लगी थी। उनके कहने पर ही अब्बा मेरी अम्मा को लेकर डॉक्टर के पास गए। हालांकि जेब इतनी इजाजत नहीं देती थी, उसके बावजूद अब्बा ने अम्मा को शहर की एक बड़ी लेडी डॉक्टर को दिखाया। उसने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए और कहा कि अम्मा के मां बनने के चांस बहुत कम हैं। फिर भी उन्होंने अपने तौर पर कुछ दवाइयां लिखकर दी और अगले विजिट के लिए बुलाया। अम्मा बाकायदगी से वो दवाइयां खाती थीं और डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्बा ने अम्मा को फ्रूट वगैरह भी लाकर देने शुरू कर दिए। बावजूद इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह अल्लाह की रहमत हो जाए, मगर नतीजा 0 था। अम्मा को दवाएं वगैरह खाते हुए भी मुसलसल 1 साल मुकम्मल हो गया था, मगर ना तो दवाएं कोई असर कर रही थीं और ना ही दुआएं रंग लाती थीं। अब तो डॉक्टर भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं दिला रही थी। तब अम्मा ने तंग आकर दवाएं खाना छोड़ दी। इन्हें लगता था कि अगर इनके नसीब में औलाद का सुख होगा तो ऐसे ही हो जाएगी। मगर जब शादी को पूरे 5 साल मुकम्मल हो गए और हर उम्मीद भी दम तोड़ गई, तब दादी ने दबे अल्फाज में अम्मा को कुछ समझाया। उसके बाद अम्मा ने खुद ही अब्बा को दूसरी शादी के लिए मनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से अम्मा कर रही थी। वो ऐसे जाहिर करती थी कि जैसे इन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा और वो अब्बा की शादी करवा के सौतन के साथ मिलजुल कर रहेंगी। अब्बा ने इनसे ये भी कहा कि दूसरी शादी होने के बाद भी अगर औलाद ना हुई तो फिर क्या होगा। तब अम्मा कहने लगी कि आजमाने से पहले ही नतीजे पर नहीं पहुंचते। बस अम्मा ने अब्बा को किसी न किसी तरह मना लिया
बस अम्मा ने किसी न किसी तरह अब्बा को मना लिया। अब्बा जानते थे कि अम्मा ये सब दादी के कहने पर अब्बा जानते थे कि अब्बा जानते थे कि अम्मा ये सब दादी के कहने पर कर रही थी, इसीलिए वो खामोश हो गए। जैसे ही अब्बा ने रजामंदी दिखाई तो दादी ने उनके लिए फिर से लड़की देखना शुरू कर दी। अब्बा चाहते थे कि वो किसी ऐसी औरत से शादी करें जो बेसहारा या बेवा हो, यहाँ तक कि वो किसी तलाक याफ्ता लड़की से भी शादी करने को तैयार थे। मगर दादी चाहती थी कि उनके बेटे के लिए इन्हें छोटी उम्र की कमारी लड़की ही मिले। आखिरकार 6-7 महीने की तलाश के बाद दादी को मनचाहा रिश्ता मिल गया, जिस लड़की को अपनी दूसरी बहू बनाने के लिए तैयार हुई थी। इसका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था। वो 6 बहनें थीं, इसीलिए उनके माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता कबूल कर लिया जहां पर पहले से होने वाले दामाद की बीवी मौजूद थी। इस बात पर अब्बा को बड़ी हैरानी हुई कि कोई माँ बाप अपनी 18-19 साल की बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं। मगर गुर्बत वो चीज है जो कुछ भी सोचने और करने पर मजबूर कर देती है। जब अब्बा का रिश्ता वहां पर तय हो गया तो अब्बा ने दादी से कहा कि वो बिल्कुल सादगी के साथ निकाह करेंगे, लड़की वालों से कुछ भी नहीं देंगे। मगर जहां पर इतने मसले थे वहां पर अब्बा ने एक और मसला उठा लिया, क्योंकि शायद वो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने शादी को रोकने के लिए जब ये कहा कि घर में कमरे तो सिर्फ 2 हैं, एक कमरा मेरे और मेरी बीवी के पास, तो दूसरा आप दोनों के पास है, तो आने वाली कहाँ रहेगी। इस बात का हल भी बड़ी जल्दी निकल आया। दादी कहने लगी कि हम मियां बीबी बरामदे में शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात पर तो अब्बा की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि अब कोई भी जवाब नहीं बच रहा था कि वो किसी बात को दलील बनाकर इस रिश्ते से इनकार कर सके। इस तरह ना चाहते हुए भी अब्बा की जिंदगी में एक और औरत आ गई, जिसे मेरी अम्मा ने दिलो जान से कबूल किया। दूसरी बीवी के आ जाने के बाद भी अब्बा ने अम्मा की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती। वो दोनों को बिल्कुल एक जितना वक्त देते थे और दोनों की जरूरियात का ख्याल रखते थे। घर के काम भी पहले की तरह चलते रहे। दादी ने छोटी बहू को इतनी जल्दी काम पर नहीं लगाया। उनका कहना था कि वो तो अभी बहुत छोटी है, इसीलिए इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती। हालांकि जब अम्मा इस घर में ब्याह कर आई थी तो इनकी उम्र भी इतनी ही थी, मगर उन्होंने ना सिर्फ पूरे घर को संभाला बल्कि घर वालों के साथ मिलकर समोसे पकौड़ों का सामान भी तैयार करती थी। अम्मा को दादी की ये बात सुनकर थोड़ा दिल में ख्याल तो आया और दुख भी हुआ, मगर वो मुस्कुरा के इस दुख को भी सह गईं, क्योंकि उनकी नीयत और मकसद बिल्कुल साफ था। थोड़ा वक्त गुजरा तो नई बहू ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, मगर दादी बड़ी जल्दी से काम से रोक देती और कहती कि बस तुम ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखा करो, ठीक से खाया पिया करो और आराम भी किया करो, काम बड़ी बहू देख लेगी। तब अम्मा भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाती और अपनी सौतन को काम करने से रोक देती थी। अब्बा की दूसरी शादी को मुश्किल से 4 महीने गुजरे थे जब दादा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। कोई भी दादा की अचानक मौत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थे, या शायद उन्होंने कभी अपने किसी दुख तकलीफ का किसी से जिक्र ही नहीं किया था और ना ही वो कभी डॉक्टर के पास गए थे। बहरहाल उनके इंतकाल के बाद घर और रेडी की सारी जिम्मेदारी अब्बा पर आ गई। अब्बा तो अब जैसे एकदम घबरा गए थे, क्योंकि घर में भी अब इनकी जिम्मेदारियां और फराइज दुगने हो गए थे और बाप का भी साया सर पे नहीं रहा था। मगर अब्बा ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और समोसे पकौड़ों का काम पहले की तरह करते रहे। दादा के जाने के 1 महीने बाद ही घर में आने वाली नई बहू उम्मीद से हो गई। सबसे ज्यादा खुशी तो दादी को थी, मगर अम्मा अब्बा भी बेहद खुश थे। दादी पहले ही अपनी छोटी बहू का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, मगर जब से इन्हें ये खुशखबरी मिली थी उन्होंने तो बहू को पलंग से पैर उतारने के लिए भी मना कर दिया। हर चीज इन्हें कमरे में पहुंचाई जाती थी और वो भी खूब नाज नखरे दिखाती थी। अम्मा ने बहुत दिल से इनकी खिदमत की और इनका बहुत ख्याल रखा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था सबके दिल में जहां एक खुशी जगह बना रही थी वहीं एक धड़का भी लगा रहता था, क्योंकि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंतजार के बाद मिलती है तो इसे खोने का डर भी लगा रहता है।
इंतजार की घड़ियां गिनते गिनते बड़ी मुश्किल से खत्म हुई और वो वक्त आ गया जब खुशी सरापा वजूद बन के अम्मा अब्बा के आंगन में आने वाली थी। मगर जो हुआ उसके बारे में तो किसी ने सोचा तक नहीं था। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद मेरी पैदाइश हुई, लेकिन मेरे पैदा होते ही मेरी सगी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। हालांकि किसी ने भी ये सोचा तक नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अम्मा की तबीयत और हालत ऐसी नहीं थी। मगर डॉक्टर का कहना था कि अम्मा बहुत कम उम्र थी, इस वजह से वो इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस बात पर अब्बा को बहुत अफसोस था कि उन्होंने क्यों एक छोटी उम्र की लड़की से शादी की। तब अम्मा ने ही इनको समझाया कि हमारी शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी, मगर औलाद ना हो सकी। जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, और जिसके साथ जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। बड़ी मुश्किल से अब्बा ने अपने आप को संभाला। मेरी सगी माँ के गुजर जाने के बाद मैं इस औरत की गोद में चला गया जिसने मुझे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। इसी वजह से मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरी बड़ी या सुतेली माँ है। हालांकि मुझे बड़ी छोटी उम्र में ही पता चल गया था कि जिसकी गोद में मैंने परवरिश पाई और जिसके जेरे साया में बड़ा हो रहा था वो मेरी सगी माँ नहीं है, और ये बात मुझे खुद अम्मा ने ही बताई थी। तब मैं समझा कि वो मुझसे मजाक कर रही हैं, मगर ये हकीकत थी। मगर इस हकीकत को जान लेने के बावजूद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने पैदा करने वाली माँ को तो देखा तक नहीं था। अलबत्ता जिसने मुझे अपने प्यार की ठंडी छांव में पाला वो ही मेरे लिए सब कुछ थी। बल्कि मैं तो कभी कभी अपनी सगी माँ के जिक्र पर इन्हें छोटी माँ कह देता था, मगर सुतेली माँ को कभी मैंने बड़ी माँ कहकर नहीं पुकारा था। मैं जब 4 साल का हुआ उस वक्त अम्मा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया। मैं अम्मा अब्बा का बहुत ही लाडला था, मगर सबसे ज्यादा लाडला तो दादी का था। हालांकि दादी के लाड प्यार में रहते हुए मुझे बिगड़ने का खूब मौका मिलता रहता था, मगर अम्मा मेरी बहुत अच्छी तरबियत कर रही थी। वो रोजाना रात को सोने से पहले मुझे छोटी मोटी कहानियां सुनाती रहती और वही बातें मेरे दिलो दिमाग में बैठ जाती थीं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, अम्मा की तरबियत और परवरिश ने मुझे बहुत सुलझा हुआ बच्चा बना दिया। मैं कभी भी अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ गली में नहीं खेलता था और अपने साफ सुथरे कपड़ों का भी बहुत ख्याल रखता था। हाँ, मैं बाहर जाता जरूर था, मगर कभी मैंने ना तो गली मोहल्ले में खेलने की कोशिश की थी और ना ही मेरे कपड़े गंदे होते थे। मोहल्ले वाले मेरी तारीफें करते और इन तारीफों की असल हकदार तो मेरी माँ थी, जो घर के काम भी करती थी, अब्बा के साथ समोसों पकौड़ों का माल भी बनवाती और दादी की खिदमत भी किया करती थी। इसके साथ साथ उन पर मेरी जिम्मेदारी भी थी। मैं तो अपनी अम्मा को इस तरह काम करते हुए देख देख कर हैरान होता था। मैं अम्मा से कहता कि वो थक जाती होंगी, मगर अम्मा हंस के मुझे प्यार करती और कहती कि जब मेरा बेटा मुझसे इतने प्यार से पूछता है तो मेरी सारी थकन उतर जाती है। मैं अम्मा को दबाने लगता तो मुझे मना कर देती थी। मैंने छोटी सी उम्र में ही सोच लिया था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी अम्मा के लिए बहुत कुछ करूंगा। हालांकि अब्बा भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश भी करते थे, मगर मैं अम्मा से बहुत करीब था। जब मैं 12 साल का हुआ तो दादी का इंतकाल हो गया और घर में हम तीनों रह गए। लेकिन घर के हालात भी पहले जैसे नहीं रहे थे। हालांकि अब्बा वही काम करते थे और पहले की तरह सारा दिन समोसे पकौड़े बेचने में लगा देते थे, मगर अब काम पहले जैसा नहीं चलता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे काम भी मंदा जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे काम भी मंदा होता जा रहा था। इसके बावजूद अम्मा अब्बा ने मुझे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया। वो दोनों अपना पेट काट के और अपनी ख्वाहिशात का गला घोट के मुझे अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनकी हर कुर्बानी को देखता भी था और वक्त के साथ साथ मेरे इरादों में मजबूती भी आती जा रही थी। जब मैं मैट्रिक में पहुंचा तो मेरी कोशिश होती थी कि अपने टीचर्स या अच्छा पढ़ने वाले सीनियर लड़कों से बातचीत का सिलसिला बढ़ाता रहूं, ताकि मुझे अच्छे मशवरे भी मिल सके और मेरी संगत भी खराब ना हो, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो किसी चीज में मुझे गाइड नहीं कर सकते थे।
इसके बावजूद उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया और कर रहे थे वो कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे एक मुखलिस टीचर ने मुझे मशवरा दिया कि अगर मैं अपनी पढ़ाई पर इसी तरह फोकस करता रहूं और मेहनत करता रहूं तो मुझे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और अम्मा अब्बा की भी यही ख्वाहिश थी। इसीलिए मैंने मैट्रिक में ही अनथक मेहनत करना शुरू कर दी और बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास करके कॉलेज में चला गया। कॉलेज जाने के बाद मेरी जान तोड़ कोशिश थी कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाए, क्योंकि अम्मा अब्बा पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी चला रहे थे। ऐसे हालात में वो मेरी पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी मुझे किसी बात के लिए इनकार नहीं किया था। वो वक्त बहुत मुश्किल था, मगर वक्त का काम गुजर जाना होता है और यूं मैं इंटर में पहुंच गया। मुझे अच्छी तरह याद है इंटर का वो दौर जब मैं कॉलेज से घर जाकर खाना खाता और पढ़ने बैठ जाता था। कभी दिन गुजरता और रात सर पे आ जाती। अम्मा मुझे खाने के लिए आवाजें देती रहती, फिर मैं अम्मा अब्बा का सोचकर ही उठ जाता। मगर खाना खाने के फौरन बाद दोबारा पढ़ने बैठ जाता था और रात के 2-3 बजे तक पढ़ता रहता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि हमारे घर के क्या हालात हैं और अम्मा अब्बा कितनी मुश्किल से घर चला रहे थे। मगर इसके बावजूद अम्मा मेरे लिए दूध का गिलास ले आती। मैं इन्हें लाख मना करने की कोशिश करता, मगर वो मुझे कहती थी कि तुम्हारे अब्बा इसीलिए तो कमाते हैं कि तुम्हें कोई कमी ना हो। इसके बावजूद हम तुम्हारी हर जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। बस जो कर सकते हैं इसके लिए ना रोका करो। अम्मा की ये बात सुनकर मैं खामोश हो जाता। वक्त गुजर रहा था। मैंने सोचा कि कॉलेज से आने के बाद अगर मैं 2 घंटे कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू कर दूं तो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लूंगा। इस तरह अब्बा पर बोझ भी कम हो जाएगा। यही सोचकर मैंने सोशल मीडिया पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए इश्तिहार लगा दिया। बड़ी जल्दी मुझसे कुछ लोगों ने राब्ता किया और मैंने अपने वक्त और जगह की सहूलत के मुताबिक 2 जगह पर ट्यूशन देना शुरू कर दी। मेरी कोशिश थी कि मैं 2 से 3 घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, मगर वो घर एक दूसरे से ज्यादा दूर ना होता कि मेरा टाइम भी बच सके और मुझे ज्यादा ट्यूशन भी मिल जाए। मैं दोनों घरों में 1-1 घंटा पढ़ाता था। मुझे महीने का 20,000 मिलने लग गया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अम्मा अब्बा भी बहुत खुश थे, मगर वो इतने ही फिक्रमंद भी थे, क्योंकि कॉलेज, ट्यूशन और फिर अपनी पढ़ाई का लोड मुझ पर था। अम्मा अब्बा को भी यही फिक्र लगी रहती थी कि मैं कहीं बीमार न हो जाऊं। मगर अब मैं 20,000 कमा रहा था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती थी, इसलिए मैं पूरा 10,000 अम्मा के हाथ में रख देता, मगर वो ये पैसे भी मुझ पर ही लगा देती थी। मुझे ये दोनों ट्यूशन देते हुए 2 महीने हो गए। तब मुझे एक ऐसी जगह ट्यूशन मिली जहां पर एक ही घर में 20,000 कमा सकता था, क्योंकि वो काफी अमीर पार्टी थी। मैंने वहां पे ट्यूशन शुरू करने का इरादा कर लिया। वहां जिस लड़की को पढ़ाना था वो मैट्रिक में थी। मैं तो यही सोचकर वहां गया कि मैट्रिक की बच्ची है और मुझे 20,000 भी मिल जाएंगे तो महीने का 40,000 बन जाया करेगा। इस तरह घर में भी अखराजात सहूलत से होते रहेंगे। यही सोचकर मैंने फाइका को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। फाइका को ट्यूशन पढ़ाने के कुछ दिन बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि मैं तो इसे निकम्मी ही कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि लड़कियां इतनी कामचोर और निकम्मी भी हो सकती हैं। ऊपर से वो अपने अमीर माँ बाप की काफी बिगड़ी हुई औलाद थी। इकलौती होने की वजह से तो कुछ ज्यादा ही माँ बाप ने सर पे चढ़ा रखा था। ट्यूशन पढ़ने के दौरान भी वो मेज पे रखा मोबाइल फोन उठाकर देखना नहीं भूलती थी, जबकि मैं इसे कई बार कह चुका था कि पढ़ाई के दौरान फोन कमरे में साथ ना लाया करे, मगर वो मानती नहीं थी। इसे पढ़ाते हुए भी मुश्किल से 15 दिन गुजरे थे कि मुझे अंदाजा होने लग गया कि फाइका जैसी लड़की को पढ़ाना किसी सर दर्द पालने से कम नहीं है। मगर मैं ये सोचकर ट्यूशन देने जाता रहा कि मुझे बहुत अच्छी फीस मिल रही थी और अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। हो सकता है कि मेरी मेहनत रंग लाए और वो पढ़ाई की तरफ माइल हो जाए। यही सोचकर मैं इसे मोटिवेट करना शुरू कर दिया।
यही सोचकर मैंने इसे मोटिवेट करना शुरू कर दिया। मैं इससे पढ़ाई के अलावा भी 10 से 15 मिनट के लिए बात करने लगा था, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने चंद दिन में ही मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनना शुरू कर दिया। मगर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बात सुनने के दौरान वो बहुत गौर से मेरे चेहरे और हाथों की हरकत को देखती थी। मुझे लगा कि वो तवज्जो से सुनती है, मगर उसके इस तरह देखने से कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। कुछ दिन और गुजरे तो मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस होने लग गया कि फाइका मुझ में कुछ और तरह की दिलचस्पी लेने लग गई थी। हालांकि मैं इसका टीचर था और वो मेरे लिए एक कम उम्र स्टूडेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इसे पढ़ाना था, जो कि मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। मगर दिन ब दिन फाइका की हरकतें कुछ अजीब होती जा रही थीं। जिस दिन मुझे 1 महीना मुकम्मल हुआ तो उसके वालिद ने कमरे में आकर फीस का लिफाफा मुझे थमाया और ये भी कहा कि आप फाइका को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो आपकी बहुत तारीफें करती है और जिससे मेरी बेटी खुश हो जाए तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। इसीलिए उन्होंने खुश होकर इनाम के तौर पर एक और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने इनकार किया, मगर वो जबरदस्ती करने लगे, तो शुक्रिया कहते हुए मैंने दोनों लिफाफे थाम लिए और अपनी जैकेट की जेब में रख दिए। उस दिन फाइका ने कहा कि इसका पढ़ने का मूड नहीं है, इसलिए मैं चाय वगैरह पीकर जल्दी वहां से निकल गया। घर जाकर जैसे ही मैंने लिफाफे खोले तो एक में मेरी फीस 20,000 रुपए निकली और दूसरे में अलग से 10,000 रुपए मौजूद थे। मैं तो इतना हैरान हुआ कि थोड़ा सा खुश होने पर ये अमीर लोग कैसे पैसों की बरसात कर देते हैं। मैंने अम्मा को बताया तो वो भी खुश हो गई और कहने लगी कि मेरा बेटा है ही इतना लाइक फाइक कि कोई भी इससे खुश होकर इसे बड़े से बड़ा इनाम दे सकता है। मैंने वो सारे के सारे पैसे अम्मा के हाथ में रख दिए। उस दिन अम्मा ने खाने में गोश्त बनाया और हम तीनों ने बड़े अच्छे माहौल में बैठकर खाना खाया। अगले दिन ट्यूशन जाते हुए मैं बड़ा खुश था कि अगर इसी तरह तीनों ट्यूशन चलती रही तो मैं अपने प्यारे अम्मा अब्बा को भी सपोर्ट कर सकूंगा। मगर फाइका की हरकतें जैसे जैसे अजीबोगरीब होती जा रही थीं, मेरी परेशानी भी बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। मैं इसे इंग्लिश ग्रामर समझा रहा था, तब उसने एकदम से मेरे हाथ पे अपना हाथ रख दिया। मैंने हैरान होकर इसकी तरफ देखा तो फौरन उसने हाथ पीछे किया और सॉरी कहने लग गई। वो ये जता रही थी कि ऐसा गलती से हुआ है, मगर मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि ये हरकत उसने जानबूझकर की थी। फिर उसके बाद तो ट्यूशन की टाइमिंग में चाय के अलावा भी मेरे लिए कई खाने पीने के लवाजमात आने लगे। मैंने मना किया तो फाइका कहने लगी कि ये हमारे घर का रिवाज है, इसीलिए आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मजीद कुछ दिन गुजरे तो फाइका की हरकतें और भी अजीब होना शुरू हो गईं। यहाँ तक कि उसने दुपट्टे का तरद्दुद भी छोड़ दिया और जीन्स पहनकर पढ़ने के लिए कमरे में आने लग गई। जब मैंने कुछ बहाना बनाकर उसकी माँ से कहा कि मैं फाइका को लाउंज में बैठकर पढ़ाऊंगा, इस तरह मेरी जान छूट गई और हम दोनों लाउंज में बैठकर पढ़ने लग गए। मुझे मालूम था कि फाइका को यह बात बहुत बुरी लगी है, मगर वो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन कुछ दिन ही गुजरे थे तो इसकी माँ ने कहा कि कुछ दिन के लिए मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कमरे में ही बैठकर पढ़ाना पड़ेगा। मेरी फिर जान पर बनाई, क्योंकि मैं ना तो वो ट्यूशन छोड़ना चाहता था और ना ही फाइका की अजीबोगरीब हरकतों को बर्दाश्त कर सकता था। मैंने सोचा कि अपने काम से काम रखूंगा और ट्यूशन पढ़ा के जल्दी निकल जाया करूंगा। मगर एक दिन फाइका ने धड़ल्ले से मुझे कह दिया कि वो मुझे बहुत पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर तो मुझे काफी शौक लगा, मगर क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक मैट्रिक में पढ़ने वाली बच्ची अपने ही ट्यूशन टीचर को ऐसा कहेगी। मगर शायद अमीर लोग ज्यादा ही एडवांस होते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं जिस चीज का फैसला कर लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। उस दिन तो जैसे तैसे मैंने उसे जान छुड़ाई और चला गया। दूसरे दिन ट्यूशन जाते हुए मैं सोच रहा था कि शायद वो भी अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होगी, मगर वहां तो दूर दूर तक शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे, बल्कि वो तो ढिठाई से मोहब्बत के रास्तों पे चलना चाहती थी, जबकि मेरे लिए ये नामुमकिन था।
2-3 दिन ऐसे ही गुजरे तो मैंने ट्यूशन छोड़ने का फैसला किया और इसे कह दिया कि मैं कल से नहीं आऊंगा। तब उसने मेरे साथ वो किया जिसका मैंने तसव्वुर तक नहीं किया था। ये उस दिन की बात है जब मेरे एंट्री टेस्ट में सिर्फ 20 दिन बाकी थे। उस दिन फाइका ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मेरा प्रपोजल कबूल करते हो या नहीं। मैंने इनकार कर दिया तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं हैरान परेशान खड़ा उसका ये तमाशा देख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसकी मां अंदर दाखिल हुई और पीछे पीछे उसका बाप भी था और पीछे ही बाप भी था। वो भागकर अपने बाप के सीने से लग गई और कहने लगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी और ज्यादती करने की कोशिश की है। मेरे तो कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि वो क्या बकवास कर रही थी। उसका बाप उसकी बात सुनकर बेहद गुस्से में आ गया और उसने आकर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। हालांकि उसने मुझे कुछ कहने का भी मौका नहीं दिया था। उसके बावजूद मैं अपनी सफाई में बोलता रहा, चीखता रहा, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और फिर उन्होंने फोन करके अपने गार्ड्स को बुलाया जो हर वक्त बंगले के गेट पर मौजूद रहते थे। उन्होंने मुझे इतना मारा पीटा कि मेरा हाल बुरा कर दिया। मारने पीटने के बाद वो मुझे सड़क पर फेंक कर चले गए। लोगों ने ही मेरी मदद की और मुझे अस्पताल लेकर गए और फिर किसी तरह अम्मा अब्बा से राब्ता हुआ। मेरा वो एंट्री टेस्ट ऐसे ही गुजर गया। मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी कि मैं जाकर एंट्री टेस्ट दे सकता। मुझे तो अस्पताल में ही 10-15 दिन लग गए थे क्योंकि मेरे सर पर बहुत शदीद चोटें लगी थी जिसकी वजह से काफी टांके भी लगे थे। आज इस वाकये को 4 साल गुजर चुके हैं, मगर मैं कभी भी ना फाइका को भूल सकता हूँ और ना इस वाकये को। हालांकि इसके बाद कभी मेरा इन लोगों के साथ आमना सामना नहीं हुआ, मगर मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि एक नादान लड़की की वजह से मेरी पढ़ाई का 1 साल जाया हो गया और मैं इस हाल को पहुंच गया था कि मेरे माँ बाप की जान पे बनी हुई थी। फिर मैंने 1 साल बाद एंट्री टेस्ट दिया और आज मैं मेडिकल के 30वें साल में हूँ। मैंने 1 साल बाद एंट्री टेस्ट दिया। मेरी पढ़ाई मुकम्मल तौर पर स्कॉलरशिप के जरिए हो रही है। अब माँ बाप मुतमईन और खुश हैं क्योंकि मेरा मुस्तकबिल रोशन है और मैं अपने माँ बाप को एक बेहतरीन जिंदगी देने के वो ख्वाब देख रहा हूँ जिनकी ताबीर बहुत करीब है। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हमें लगता है कि आगे कुछ भी नहीं हो सकता, मगर ऐसे वक्त में अपनों का साथ और इनकी दुआएं ही काम आती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।